Hi guys, welcome back to the Rover Vibes. This is the Health and Happiness series, and we are with Rahul here to talk about calcium. And thank you so much for joining us today. And it is good to be back after a long time. And all I would like to say is that it's always good to engage with you guys to answer your questions. And thank you so much for all the love and support on YouTube last month, and also on our other pages like Facebook and Instagram. Though we are not being very regular, and though we are not being very consistent, but it is always good to hear from you. So if you have any questions, any comments, please post on this feed. And if we are not live and you're listening to this feed later on, I was told there are a lot of comments which come after the feed is over. So please DM us in that case. You have a number on Facebook. You can always reach out to us. I am Samara, your psychic energy reader, and I'm with Rahul here once again. He's a fitness coach, nutritionist, special population expert, and an anabolic coach. And we are here to talk about calcium. I think there is some traction on the feed. Guys, whoever is joining in, please say hi. Rahul, would you like to say something about the Health and Happiness series in general? Yeah, of course. See, guys, हेल्थ एंड हैप्पीनेस सीरीज जो कि मेरे ख्याल से 2 महीने से ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया, अराउंड 3 महीना हो चुका है। ठीक है, तो हेल्थ एंड हैप्पीनेस सीरीज से सीधा सीधा मतलब ये था कि आपकी जो हेल्थ है उससे आप किस तरह से हैप्पी रह सकते हैं। तो उसी को गाइड करने के लिए हम मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, फूड और कैलोरीज, इन सारी सप्लीमेंटेशन, इन सारी चीजों पे बात करते आए हैं। ठीक है, तो आज से पहले भी काफी फीड हो चुकी हैं, काफी लाइव कर चुके हैं हम उस पे, जो कि सभी ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब पे भी जाके द रोवर वाइब सर्च करके वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी के लिए को बताना भी चाहूंगा मैं कि फीड पे आप जब ये फीड ऑफ हो जाती है उसके बाद भी कुछ भी कमेंट करके कोई क्वेश्चन कर सकते हैं आप। Right, but in that case, it is better to send us a DM. Okay, so that because sometimes we don't get the notifications, and sometimes we are told after a week or so that there were little bit of comments on the previous feeds. So it is better, instead of commenting on the feeds, it's always good to ask the question. You can DM us directly, in the message service on Facebook. Otherwise, there is a WhatsApp number जहाँ पर आप consult कर सकते हैं. So if you're looking for nutrition counseling, you can always consult over there, and you can take an appointment with Rahul, who can guide you over the phone as well. And if you're interested in diets or any kind of fitness programs, that is also the best thing, is to reach out on the number which is given on the page for WhatsApp. वो रितु का नंबर है जो कि हमारा सारा मैनेज करती है. So she will make sure that you get all the information that you need. Right? Right. So let's start. And my first question to you, Rahul, is that we're talking about calcium today, right? Yes, calcium. And I want to say calcium as well, because Indian काफी सारे calcium. Indian accent में वो calcium. They say calcium. So we are talking about calcium. So this calcium, when we've done previous feeds, right? So this feed is about, I think हमने vitamins cover किए हैं. D, C. तो वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स हम ऑलमोस्ट सभी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स है A, D, E, K वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनकी फीड ऑलरेडी YouTube और Facebook पे है। ठीक है, वहीं हमने वाटर सोल्यूबल विटामिन भी कवर किए हैं B और C। ठीक है, उनकी फीड भी आपको YouTube और Facebook पे देखने को मिल जाएगी। Correct. So with that in mind, what I would like to start off with calcium. Now Rahul, what is calcium? कैल्शियम क्या है? ये एक तरह का मिनरल है जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। ठीक है, और हमारे बोन में अवेलेबल होता है। बोन में अवेलेबल होता है, so it's one of the minerals, and I think ये बॉडी का बहुत ही इंटीग्रल मिनरल भी माना जाता है। जी, बॉडी में सबसे जरूरी मिनरल है ये बॉडी के लिए, और बॉडी फंक्शनिंग के लिए सबसे जरूरी मिनरल है, जो कि डायरेक्टली हम कैल्शियम बता सकते हैं। Right. So ये कितना जरूरी होता है बॉडी के लिए? Like, what is the importance of having this mineral, like calcium? Why is it important? What are the benefits of these things?
So can you throw some light on that? जी, अगर कैल्शियम पे बात आए तो कैल्शियम की सीधी सीधी लोगों को ये समझ में आता है कैल्शियम मतलब जॉइंट हेल्थ, मतलब बोन हेल्थ, लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। राइट, ठीक है, जैसे कि हमारे हार्ट से जुड़ी हुई डिजीजेस होती हैं, ठीक है, जो बहुत सारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हो जाती हैं। ठीक है, हमारे स्टोन हैं, किडनी स्टोन हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं। वहीं हमारे आर्टरी और सिग्नल जो भेजती है हमारे ब्रेन तक, हमारे माइंड तक, ठीक है, सेंसरी नर्व्स जो होती हैं उनका एक एबिलिटी होती है फ्लेक्सिबल होने की, इलास्टिक और एक्सटेंशन होने की। तो एक्सटेंशन मतलब खुलना, इलास्टिक मतलब खुलकर वापस आना। ठीक है, तो उसके फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें हमारे टीथ, हमारे नेल्स, हमारे हेयर, हमारे जॉइंट्स, तो ये भी कैल्शियम की वजह से ग्रो करते हैं और साफ सुथरे अच्छे रहते हैं। Right. So, in a nutshell, you've just told how important it is. Hi, Amna. Thank you so much for joining the feed. It is good to have you here. And if you have any questions, please do ask. I want to highlight one more thing over here is that like Amna is here, and then there are so many people who are coming in right now. जब हम live आते हैं, this is just an initiative of Robo Vibes. Now, if you guys have already been associated with us, we are into fitness, wellness, and lifestyle solutions. So we are aiming in changing your lifestyle completely in order for you to live a healthy and happy life. जिसमें mental healing, mental wellness की services भी हैं, physical wellness and physical healing की services भी हैं. Like I said, Rahul is a special population coach, so he looks at special cases as well, like thyroid हो गया, PCOS, PCOD, diabetic, obesity, इस तरह की जो diseases हैं, तो उसमें एक आता है joint health भी, right? And joint health is directly related to calcium. So what would you like to say about that? Like, let's just dive deep into just joints right now. ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम होना बड़ा ही कॉमन हो चुका है, स्पेशली इन इंडिया। ठीक है, ये बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम समझते हैं, तो इसको लोगों को फिर ये लगता है कैल्शियम अगर हम कम खा रहे हैं या फिर थोड़ा ज्यादा खाएं या फिर मिल्क ज्यादा बढ़ा लेते हैं या पनीर ज्यादा खा लेते हैं, दूध दही छाछ जैसी चीजें हम इंक्रीज कर लेते हैं जिनमें कि कैल्शियम होता है, जो कि वो बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन नहीं सोचते तो क्या कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में किस तरह कितना हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। ठीक है, इस चीज का लोग नहीं सोचते हैं उतना। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी मुझे ऐसे मिलते हैं जो मतलब कोई बुराई नहीं है, मुझसे पूछते हैं वो, ठीक है, वो कहते हैं कैल्शियम खाया है उसके बाद भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। रीजन सिर्फ ये है कि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि आप उसके साथ विटामिन डी सफिशिएंट नहीं डाल रहे हो अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है, तो सीधा सीधा रीजन है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं कैल्शियम के बॉडी में एब्जॉर्ब ना होने के, लेकिन एक मेजर फैक्टर है विटामिन डी की आइडल रेशियो बॉडी में नहीं जाना जी। राइट। सो अगर बॉडी की आइडल रेशियो के बारे में हम थोड़ा बाद में आएंगे कि हाउ टू कंप्लीट दैट। सो इससे पहले कि हम ये बताएं कि कैल्शियम किस तरह से इम्पोर्टेंट है, आई वांट टू आस्क यू थिंग्स लाइक अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो सबसे पहले आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? अगर डेफिशिएंसी होती है तो क्या क्या सिम्टम्स नजर आने लगेंगे बॉडी में? ठीक है, अगर एज किसी की ज्यादा है, ठीक है, तो उस केसेस में सबसे पहले तो जॉइंट हेल्थ वीक होने लगेंगे, मतलब और भी चीजें होंगी, लेकिन जो मेजर होगा डैमेज वो जॉइंट हेल्थ का होगा, हमारी बोन हेल्थ का होगा। ठीक है, बोन का जो एक डेंसिटी होती है, ठीक है, हमारी जो बोन होती है, बोन की जो डेंसिटी है वो लो होती रहती है, और हमारी बोन का जो एक्चुअल साइज होता है और डेंसिटी होती है एकदम हार्ड रहती है। ठीक है, तो हार्ड और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के बाद जब बोन जो होती है वो एक तरह से फ्लेक्सिबल भी होने लगती है। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन होता है। ठीक है, जिसका कारण होता है जॉइंट हेल्थ का वीक होना, बोन का वीक होना। अगर आप गिरे हो, छोटी मोटी चोट भी लगी है, तो वो बोन भी क्रैक हो जाती है। ठीक है, क्रैक होना बहुत जल्दी हो जाता है, और आपकी कैल्शियम की वजह से आपके मसल्स में स्ट्रेन और स्ट्रेन बहुत जल्दी आता है। कुछ भी छोटा सा आपने सपोज बॉल भी तेज फेंकी, ठीक है, यहाँ कैच करने के लिए अचानक से भागे, ठीक है, तो भी सिर्फ कैच करने के लिए नहीं, हर चीजों के लिए भी, ठीक है, तो आपकी मसल में बहुत जल्दी स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है,
तो लोग ये कह के टाल जरूर देते हैं कि वार्म अप नहीं था बॉडी में ठीक से, वो रीजन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कैल्शियम भी एक बड़ा रीजन है इसका। फिर हमारे नेल्स की जो ग्रोथ है, नेल्स हमारे टेढ़े मेढ़े आने लगते हैं, लोग सोचते हैं ठीक है ऊपर वाले ने ऐसे दी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। हेयर फॉल होने लगता है, गंजापन आना शुरू हो जाता है, तो हमारे टूथ वगैरह है, इनके ऊपर जो एक मसूड़े जिन्हें हम कहते हैं, उनके ऊपर से एक लाइनिंग जा रही होती है, उसमें से ब्लड आने लगता है। हम कोई भी फ्रूट खाते हैं उसमें हल्का सा ब्लड टच होके निकलता है, वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब एंडलेस है अगर मैं लिस्ट खोल के बैठ जाऊं तो। राइट, सो ये सारे सिम्टम्स जब आपको दिखते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नो देयर इज द कैल्शियम कैन बी अ कॉज टू इट, व्हिच मेक्स मी आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट नॉर्मली कोई भी सिम्टम देखता है तो हम जनरली उसको किसी ना चीज से कनेक्ट करते हैं जी। ओके, सो लाइक फॉर एग्जांपल भाई आपको कोल्ड हो गया तो हाँ विटामिन सी खा लो, यू नो। सो यू नो ये कोई ना, ये जो मतलब मिथ ही कहूंगी मैं एक तरह से कि दैट अब जैसे बोन में प्रॉब्लम आ गई या बोन हेल्थ आपकी वीक हो गई, तो आप सीधा सीधा उसको कैल्शियम से कनेक्ट करेंगे। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? क्या ये एक ही मिनरल का काम है और इज इट समथिंग व्हिच इज ओवरऑल? नहीं, अगर हम इस तरह से अंदाजा लगा के ये बोले कि आपको विटामिन सी खानी चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, अंदाजा लगा के हम ये बोलें कि विटामिन डी खा लो आपका हेयर फॉल कम होने लग जाएगा, या फिर अंदाजा लगा के हम ये बोल दें कि आपका हेयर फॉल होने का कारण ये है कि फॉलिक एसिड नहीं जा रहा है बॉडी में या बायोटिन नहीं जा रहा है बॉडी में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन किसी भी एक चीज की डेफिशिएंसी से बॉडी में इतने सारे सिम्टम्स नहीं आते हैं, ठीक है। एक छोटा सा भी सिम्टम्स आने का जो कारण होता है वो कोई एक विटामिन के ड्रॉप होने से बॉडी में नहीं होता है। कीप इन योर माइंड, आंखें खोलो, ठीक है। कोई अगर ये कहता है तेरी बॉडी में एक्स चीज की कमी है इसलिए ऐसे हो रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। विटामिन डी की कमी से हेयर फॉल जरूर हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैल्शियम की कमी से भी होता है वो तो, विटामिन बी की कमी से भी होता है वो तो, बायोटिन बॉडी में नहीं होगा तब भी होता है वो तो, विटामिन ई नहीं होता है तब। हाँ, आपने शैम्पू की बोतल पे जरूर लिखा देखा होगा कि विटामिन ई है इसमें, आपका हेयर फॉल बहुत कम होगा इससे, विटामिन ई हेयर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब उनको कौन समझाए कि विटामिन ई खाने का ना कि लगाने का, ठीक है। और शैम्पू में मतलब ऐसा तो नहीं होगा पी जाओ उसको लेकिन विटामिन ई खाओगे बॉडी तब एब्जॉर्ब करेगी, लगाओगे कंपैरेटिवली उसके बॉडी खाने से एब्जॉर्ब करती है। राइट, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर जुड़े रहते हैं, किसी एक चीज को हम ये बोलें कि इस चीज की वजह से हुआ है, ठीक है, उसको हैंड्स अप इस तरह से नहीं करा सकते हैं। करेक्ट। सो आई थिंक ये एक ओवरऑल चीज है जो आपको पूरी प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एक यू नो प्रॉपर मात्रा में हों। हाँ, मैं अगर डाइट की बात करूं तो सबसे पहले हमें यही गेज करना है कि हमारी डाइट कैसी है। कोई बीमार हुआ उसको हमने विटामिन सी जरूर दे दिया या फिर उसको एंटीबायोटिक जरूर दे दी, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, डॉक्टर होते हैं, नॉट हम, ठीक है, डॉक्टर होते हैं वो मेडिसिन देते हैं, ठीक है, उससे वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी डाइट बहुत घटिया रखोगे तो उससे भी आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ने वाले हो, ठीक है। वो एक या दो बार में विटामिन सी खाने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। लाइक विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, वो बॉडी में यूरिन के थ्रू आउट होता रहेगा, ठीक है। तो डेली की डेली चाहिए। आप 4 दिन खा के सोचते हो विटामिन सी की कमी पूरी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है सबसे पहले आप डाइट ऐसी लो जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा मैक्रो के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हो। I think micronutrients we have established the fact it's very important to have in your diet, and ये इतना ही जरूरी है जितना कि macronutrients जरूरी है, right? बिल्कुल सही। There was a thing that when we talk about calcium, सीधा से लोग joint health के बारे में बात करते हैं. There's a question from Amna here. Pepsi लेने से calcium के effects. So we come to this question, Amna, a little later when we will be answering questions. Hi Jyoti ma'am, how are you? So आप भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। Yes, and I'm sure हाँ calcium से related छोटी-मोटी प्रॉब्लम है आपको भी। Yes. So when you talk about bone health, like you know the body is full of bones, right? And other calcium हम proper diet में नहीं लेते हैं, so उसका effect जो जैसे आपने बताया symptoms हो गए. So can you like elaborate it scientifically कि body से calcium किस तरह से लिया जाता है? जी,
अगर देखो, मैंने स्टार्टिंग फेज में ही आपको बताया था कि ये वो मिनरल है जो कि बॉडी में सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। 90% हमारी बॉडी में कैल्शियम अवेलेबल होता है मिनरल्स की बात जहां हम करें तो राइट। ठीक है, तो उस चीज में आपको करना क्या है, अगर ये कैल्शियम अगर बॉडी से ड्रॉप हो रहा होता है तो बॉडी को कैल्शियम की अदर फंक्शन के लिए भी जरूरत पड़ती है, ना कि सिर्फ जॉइंट हेल्थ, बोन हेल्थ के लिए, अदर चीजों के लिए भी जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो वहां फंक्शनिंग के लिए बॉडी क्या करती है, जॉइंट्स में से कैल्शियम उठा लेती है, बिकॉज़ बॉडी को चाहिए। ऊपर वाले ने बॉडी इतनी स्मार्ट बनाई है कि हर मोड पे हम सरवाइव कर सकते हैं। राइट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, नहीं मिलेगा बॉडी मैनेज कर लेगी, बॉडी प्रोटीन से काम चला लेगी, राइट, बॉडी फैट से काम चला लेगी, बॉडी भूखा रह के काम चला लेगी, बॉडी पानी से काम चला लेगी। ठीक है, तो ऊपर वाले ने बॉडी को इतना स्मार्ट बनाया हुआ है कि एक्स चीज नहीं मिलती वाई से आ जाएगा। ठीक है, जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन जुगाड़ का मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलने दो, जिस चीज की कमी है वो पूरी करो जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो हमारे जॉइंट्स हेल्थ से, हमारे बोन हेल्थ से एक तरह से प्रोटीन, वो कैल्शियम निकलता है और जहां जहां जरूरत होती है वहां पे भेज देता है उसको। ठीक है, एंड दैट इज हाउ बोन्स में से कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अगर लेमन लैंग्वेज में कहो तो वहीं से बोन वीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बोन में पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम आप खा रहे हो, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उस केसेस में भी बॉडी वहीं से कैल्शियम उठाएगी, बिकॉज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो जो चीज घर में रखी हुई है वो बाहर से बंदा नहीं मंगवाता जल्दी से, चाहे वो घर में रखी हुई चीज खराब क्यों ना हो। ठीक है, तो खराब वाली चीज को थोड़ा बहुत यूज कर लिए चल गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपको सही चीज यूज करनी है जो कि बाहर से लानी ही पड़ेगी। राइट। So anyway, you fuel your body with the food that you eat, and if you eat proper healthy food, then all of these things will not happen. जिसे कहते हैं ना, prevention is better than cure. So rather than going to the doctor and spending thousands over there in getting your test done and then finding out the possibility कि आपको हुआ क्या है and किस चीज की deficiency है और किस तरह से पूरी करनी है, so ये सारा process जो है उसको आप पहले ही avoid कर सकते हो. Spend that money. In fact उसका 1% जो कि आप हॉस्पिटल्स में इन सारी डिजीजेस में जब इतने स्टेज पे पहुंच जाती हैं वहां तक, उससे पहले आप थोड़ा सा परसेंटेज अपने हेल्थ पे, अपने खाने पे आप स्पेंड करो, क्योंकि बाहर जाते हैं फटाफट 2-3 हजार का खर्चा लोग करके आ जाते हैं, राइट. So instead of that, you spend on the things that you eat rich diet, eat good diet, good quality food, and full of minerals, full of vitamins, full of micronutrients, because वो उतने ही जरूरी हैं जितने कि macronutrients जरूरी हैं. बिल्कुल. Right. There's another interesting question from Amna here. Is there any connection between PCOS and calcium deficiency? So there's a second question that we will answer later on. Okay, so that's how Rahul just described कि scientifically body से calcium किस तरह से use होता है and bones को किस तरह से affect करता है, right? And अभी हमने ये भी establish किया है कि कोई भी disease सिर्फ एक चीज की वजह से नहीं होती है. It is because of a lot of other factors. Right. Right. तो अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, वहां पे बोलते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, डॉक्टर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर अंदाजा लगाता है और आपको XYZ चीज दे देता है. ठीक है, जो ठीक देना भी चाहिए. हर चीज पे ये बोल दे कि मुझे जुकाम हो रहा है, जाओ टेस्ट करा के आओ, ऐसे नहीं होता. ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है, लाइक जॉइंट प्रॉब्लम है पहले से, ठीक है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, बॉडी में एक हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, एंजाइटी हो रही है और रेगुलर हो रही है, तो डॉक्टर सीधे सीधे आपको लिखता है कि आप XY टेस्ट करा लीजिए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए. ठीक है, उस ब्लड टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, मतलब जो कि जरूरी भी है लिखने. ठीक है, LFT हो गया, KFT हो गया, आपका थायराइड का हो गया, TSH हो गया, ठीक है, आपका लिपिड प्रोफाइल हो गई. ठीक है, इससे जुड़े हुए और बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनसे कि उनको एक रेशियो मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है ये प्रॉब्लम हो सकती है. विटामिन बी का भी टेस्ट लिखते हैं वो, विटामिन डी का भी टेस्ट लिखते हैं वो, विटामिन सी का भी टेस्ट लिख देते हैं वो. तो उनको सीधे सीधे इजी वे में पता चल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो इसको इस तरह से ट्रीट करना है. ठीक है, कैल्शियम फिर कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी आई, बंदे से पूछा जाता है, बंदा बताता है मैं तो कैल्शियम खा रहा हूँ, दवाई से भी खा रहा हूँ, सप्लीमेंट से भी खा रहा हूँ और फूड से भी खा रहा हूँ. तो डॉक्टर समझता है कि भाई विटामिन डी की मतलब डेफिशिएंसी कम है, मतलब डेफिशिएंसी है, तो विटामिन डी डालता है जिससे कि कैल्शियम बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो.
ठीक है, इस तरह से छोटी मोटी चीजें वो गेज कर लेता है और वहां पे आपकी बीमारी का पता चलता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीजें होती हैं जो कि ब्लड टेस्ट में भी नहीं आती हैं। बहुत छोटी मोटी चीजें होती हैं। तो जहां भी ये चीजें शुरू होती हैं वो सारी आपके लाइफस्टाइल से शुरू होती है, ध्यान रखिए। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, लाइफस्टाइल से ये मतलब नहीं कौन सी गाड़ियों में घूम रहे हो, कौन से बंगलों में रह रहे हो, लाइफस्टाइल से ये मतलब है आपकी बॉडी आपका कितना साथ देती है। धूप में, बारिश में, ठंड में, छांव में, बर्फ में, हर जगह साथ रहने वाली चीज है वो है आपकी बॉडी। ठीक है, सो बॉडी से ज्यादा एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ठीक है, चाहे आप हॉस्पिटल जाएं या घर रहें, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना ही पड़ेगा, कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। Absolutely right. Another question हमारे current discussion से related है, I think we will address that right now. She says, I don't get the connection between the calcium and the hair fall. So can you go over that part once again? कैल्शियम एंड हेयर फॉल आपस में किस तरह से कनेक्टेड है? हाँ जी, कैल्शियम का डायरेक्टली कनेक्शन है हेयर फॉल से। कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमारी स्किन सेल्स जो हैं वो लूज होने लगते हैं एक तरह से। ठीक है, स्किन में जो आइडल मॉइस्चर होता है वो भी कम होने लगता है, ड्रॉप होने लगता है। तो अगर आप हेयर में देखेंगे, हेयर में एक तरह का मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो वो मॉइस्चर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, तो ड्राइनेस। ठीक है, और आप ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हेयर में जिस जगह पे ड्राइनेस आने लग जाती है वहां पे हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम से डायरेक्टली लेन देन है इसका। ठीक है जी। So, Amna, if you have any further doubt or question, बाकी सिर्फ कैल्शियम से ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, जैसे कि विटामिन बी भी हो सकता है, बायोटिन भी हो सकता है, विटामिन ई भी हो सकता है, आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो भी हो सकता है। प्रोटीन हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। Hence large pores in the face, जो she's talking about the pores. बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे फेस पे भी जो स्किन के नीचे एक लेयर होती है, ठीक है, वहां पे भी कैल्शियम एक तरह से राउंड होता रहता है, बॉडी में जाता रहता है, हमारे ब्लड में भी कैल्शियम घूमता रहता है। ठीक है, तो उसमें बॉडी में मतलब एक तरह का मॉइस्चर जो होता है, जो कि फैट भी जरूरी है उसके लिए, ना कि सिर्फ कैल्शियम, फैट भी जरूरी है। ठीक है, फैटी एसिड्स, नॉट वो वाला फैट क्या बोलते हैं कि बर्गर पिज्जा में जो उठा लिया, लाइक द गुड फैट। हाँ जी, गुड फैट। ठीक है, जिसको कि हम EPA, DHA एंड सैचुरेटेड फैट कह सकते हैं। ठीक है, बॉडी में जो मिनिमम लेवल पे जो अवेलेबल होता है तो स्किन के नीचे होता है। स्किन की एक सॉफ्टनेस बरकरार रखने के लिए फैट्स की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, और अदर विटामिन्स की भी उतनी ही जरूरत होती है। आमना का बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया है यहाँ पे, सारा डायग्नोसिस आज ही बता दो ताकि रात को टेंशन में नींद ही ना। यार कैल्शियम की फीड थी, ये तो बहुत सारी चीजें बता दी, क्या क्या लगती है। बिकॉज़ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। चलो मैं उस चीज में एक चीज ध्यान आई, ये मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही खाया था। हां राइट, ये आप खा सकते हैं। मैं वैसे दूसरा वाला रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मसल टेक का है। हां, वो आई थिंक अदरवाइज तो वी गॉट दिस मंगवाना पड़ा, बट व्हिच यू हैव जस्ट मेंशन्ड, वी आर एक्चुअली पुटिंग दिस इन द कमेंट्स। तो एक डेली फार्मूला करके इसका एक ब्रांड है, मतलब ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब डेली फार्मूला वाला मैंने अभी फिलहाल लिया है, जिसमें कि विटामिन सी भी है, विटामिन डी भी है, B12 भी है, और अदर मिनरल्स भी हैं, कैल्शियम भी है। कैल्शियम 170 mg है। ठीक है, तो आप ये भी खा सकते हैं इस तरह के, मतलब अदर वो ब्रांड भी ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जो कि मल्टी विटामिन होते हैं। राइट, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू हैव मल्टी विटामिन, जिसके अंदर सारी चीजें। हाँ जी, तो आप एक गोली खा के, 2 गोली खा के पूरे दिन की छुट्टियां कर सकते हो। आप अपनी 8-10 टैबलेट लेके खाने की जरूरत नहीं होती है। Yeah, this is just simple lifestyle changes. ये तो अभी हमने supplement की बात की, which is the external sources in form of supplements. And when we are talking about Amna, I think online सब available ही होगा। हाँ बिल्कुल, everywhere, anywhere, हर जगह available। These are international brands. अभी मैंने एक link share किया है, which is about multivitamins, and it is on our YouTube as well, so you can search over there. And this is the brand that which we actually recommend to people, and that is an international brand which is available everywhere, so that can be ordered, and I think that has the multivitamin, the nutrients in all the great ratio. कोई महंगे नहीं होते, बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल जो बिकासूल हो गई, इवियन हो गई, सेलिन लिम्सी हो गई, ये इनकी अगर कॉस्ट लगाओ तो ये महंगी पड़ जाती हैं, और ये मेरे ख्याल से मुझे 700 या 800 रुपए का पड़ा था, जिसमें कि 100 टैबलेट्स है।
Okay, so it is like अभी you're मतलब taking 100 दिन का हो गया एक तरह से। yeah, so अगर उसको actual में आप लगाओ, so this is actually cheaper। 150-200 रुपए महीना। Right. So these are the things that you need to think about when making such choices and make smart choices. Because the moment everybody will hear, oh, 700 is like very expensive. But you look at the, the number of tablets that are there, number of things which are required. She's saying 1400. हाँ जी, लमसम उतना होता है। नहीं हो जाएगा, right. So ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है कि आप किस तरह से अपना लाइफस्टाइल प्लान करते हो, एंड किस तरह से नीड टू प्लान योर पॉकेट ऑल्सो। बिकॉज कोई चीज आपको 20 रुपए में अभी मिल जाएगी, आप सोचेगा वो इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट अगर आप उसको ओवरऑल लगाओगे इन टर्म्स ऑफ जितना एमजी रिक्वायरमेंट है, तो एक्चुअली उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू बी स्मार्ट when buying any supplements which is you taking from external sources, जो कि आप फूड से अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो तो। And coming to the very interesting point here, before we answer other questions that are put here, what are the sources of calcium in our daily diet? ये क्या क्वेश्चन है? दुनिया का मुश्किल तरीन काम है इस लाइफस्टाइल को सेट रखना, करना नहीं रखना। Absolutely, maintenance is very very important. स्टार्ट करना बहुत इजी है, मेंटेन करना इज एक्चुअली अ चैलेंज। बट इफ यू लव योरसेल्फ एंड इफ यू लव योर बॉडी, लाइक ही सेड, आपके पास सिर्फ आपकी बॉडी है जो कि आप फिजिकल प्रेजेंस में इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। अगर आप उसका ही ख्याल नहीं रख सकते हो तो आप किसी चीज का भी ख्याल नहीं रख सकते हो, राइट? सो आई थिंक दैट इज योर कमिटमेंट एंड दैट इज द इन्वेस्टमेंट। it is your own investment on yourself. So सबसे ज्यादा किसी और चीज में इन्वेस्ट करने से बेटर है अपने आप में इन्वेस्ट करना, so that आप अदर चीजों में इन्वेस्ट करने के लायक रहो। बिल्कुल सही। ये तो लाइक जिंदगी को मतलब जियो, ठीक है, बाकी काट तो हलवाई फल भी जाता है, ठीक है, सब फल और सब्जियां भी जाता है, तो काटो मत, जियो इसको। राइट, एब्सोल्युटली। सो दैट्स वेरी स्ट्रांग, सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है, ये वे या ये वे। लोगों का मतलब इस तरह से थोड़ा सा एक मेरे माइंड में भी कुछ आ रहा है, मैं आई वुड लाइक टू शेयर दैट पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड अबाउट देयर डेस्टिनेशन, राइट? दे डोंट एक्चुअली एंजॉय देयर जर्नी। तो सारा मजा तो जर्नी में है, डेस्टिनेशन पे तो व्हेन यू रीच अ डेस्टिनेशन यू क्रिएट अनदर वन, राइट? So you keep creating new goals in your life, but the journey is what matters, because you're living in the journey, you're not living in the destination. So wahi baat ho jati hai, you can live in the present and enjoy your present, and have a vision for the future, but don't stay there. Okay, your life is in the now. This reminds me of a meme I got yesterday. I have it in Urdu language, but let me share the translation, please do. कद्दू और करेले के जूस पीने से ना सिर्फ वजन कम होता है, बल्कि जीने की ख्वाहिश भी खत्म हो जाती है। Lovely. Thank you so much, Amna. This is very interesting. Anyway, off topic हो गया. So coming back to the sources of calcium. Sources of calcium. Yeah. ठीक है, तो बहुत इजीली सोर्सेज अवेलेबल होते हैं कैल्शियम के, जिसमें कि आप दूध हो गया, दही हो गई, छाछ हो गया, लस्सी हो गई, पनीर हो गया, ठीक है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट है उनमें अवेलेबल होता है। और वहीं अगर नॉनवेज की बात करें तो फिशेस में भी बहुत ज्यादा नहीं पर कैल्शियम होता है। इन द फिश लाइक सैल्मन में होता है, ट्यूना में होता है, जैसी 3-4 और फिशें मैं खाता नहीं हूं तो मुझे नाम नहीं पता। You don't like it, I like it. हाँ, मुझे नाम नहीं पता उनके। So for non-vegetarians, what about chicken and meat and all of that? उनमें ना के बराबर होता है, काफी कम होता है। But anyway, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना कैल्शियम का इंटेक नेचुरल सोर्सेज से, दैट इज द फूड अवेलेबल दैट यू हैव, उनसे पूरा करो। और अगर आप उससे नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज अ सप्लीमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड। रही अगर कैल्शियम की बात, तो इजीली हम पूरा कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर मैं एडल्ट्स की बॉडी से लेकर करीब 60 साल की या 70 साल की उम्र तक के बंदे की भी बात करूं तो 1000 mg तक, 1100 mg तक भी सफिशिएंट रहता है फॉर अ डे। हाँ जी, फॉर अ डे, ठीक है। और अगर इसकी आइडल वैल्यू की बात करूं तो 200 ग्राम करीब आप दही हो गई, और 100 to 150 ml आपका जो दूध हो गया, उसमें अराउंड 300 mg तो उसी में हो जाती है। ओके,
ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मुझे तो लगा नहीं कि कोई मुश्किल काम है। I think if you were telling somebody over the phone today, I was listening to one of your counselings, and you were telling somebody to just if अगर कुछ नहीं कर सकते तो कैल्शियम की कमी सिर्फ मिल्क एंड दही से पूरी करते हैं। बिल्कुल, right? बिल्कुल, So बिल्कुल। how much of milk, how much of dahi, and then the question on milk as well, which is the higher source? हाँ जी, मिल्क है, बिल्कुल। Milk is one of the highest sources, right? So highest and cheapest source. So what do you want to say about what was I asking? किसी से मैं काउंसलिंग Yeah, I said the blanks up for you. Yeah, so you were telling ki how much milk and how much dahi can be taken generally. So take dahi if you do not like milk, Amna. है ना? So you can eat पनीर में पनीर में आइडल फैट भी होता है, अच्छा फैट भी होता है, और साथ में उसमें ये भी रहता है, क्या बोलते हैं उसको यार, प्रोटीन भी रहता है, ठीक है, और लो कार्बोहाइड्रेट रहता है, कैसीन रहता है जो कि स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है एक तरह से, ठीक है। तो आप पनीर खा सकते हैं, पनीर तो ज्यादातर का फेवरेट रहता है, इनफैक्ट जितने वेजिटेरियन है ज्यादातर सबका मोस्टली, हाँ, राइट। एंड शी इज सेइंग कोई और रास्ता मैं बता चुका हूँ, ठीक है। छाछ लस्सी तो पी ही सकते हो, वो पी लीजिए। राइट, सो हाउ मच लाइक वन ग्लास ऑफ मिल्क और वन बोल ऑफ दही, किस तरह से, मतलब मैंने अभी बताया 200 अगर आप दही लोगे और 100 to 150 ml अगर आप दूध लोगे, उसमें अराउंड 300 mg वो होता है कैल्शियम। So that is enough, and otherwise that is not enough, थोड़ा तो मतलब इसको देखते हुए आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हो चीजें, right? ठीक है। So it is necessary, and again when you're talking about different age groups, like हम infants की भी बात करें, up to like 2 years के, आजकल when the kids are very small they are on breastfeed, and आजकल आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लेडीज ज़्यादा ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं, they breastfeed for a very short period of time, and after that the child is on outside food, right? So till the time the breast milk is there, I think that is good enough, but what after that, what do you suggest for the little kids? सैशेज आते हैं कुछ, और जो बाहर के जो सोर्स होते हैं, मतलब अगर मिल्क, नॉर्मल मिल्क भी अगर गाय भैंस नॉट गाय का काउ मिल्क इज नॉट गुड फॉर किड्स, राइट, ठीक है, मतलब 1-2 साल के बच्चों के लिए ठीक नहीं, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स तो मदर फीड से ही हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज उसके बाद भी अगर हम चाहें तो उससे पूरा कर सकते हैं अपना नॉर्मल दूध, दही, पनीर वगैरह से, ठीक है, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं तो उनको 1000 mg की जरूरत नहीं है, उनको 200 अराउंड mg की जरूरत होती है। Okay, so as they're growing up, and then what? तो हर एज ग्रुप्स के लिए अलग-अलग चीजें। Correct. What about senior citizens? सीनियर सिटीजन के लिए 1000 से ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, ठीक है। और एक एज के साथ साथ देखो, हम हर चीज को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं तो टाइम को, राइट, ठीक है। तो टाइम जैसा होना है वो तो चलता रहेगा, ठीक है। हमारी बॉडी टाइम के साथ साथ ओल्ड होती रहती है, ठीक है, बिल्कुल। एजिंग जो प्रोसेस है उससे हर किसी को गुजरना पड़ता है, जो भी जिंदा है, ठीक है, हर किसी को गुजरना पड़ता है। तो एज के साथ साथ जॉइंट हेल्थ भी थोड़ा वीक होने लग जाती है। उसका रीजन ये रहता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वो नहीं जाते जो बॉडी को जरूरत रहती है, ठीक है। अदरवाइज वैसे भी जॉइंट्स कमजोर होने लग जाते हैं तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां होने लग जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर मैं बताऊं तो मतलब हड्डियों का खोखले होने को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ओके, दैट मींस द बोन्स आर नॉट स्ट्रांग। हाँ जी, तो बोन का खोखला होना एक तरह से, मतलब अगर आपकी बोन की डेंसिटी अच्छी खासी है तो बीच में से उसमें एक तरह से थिकनेस जो है वो थिन होने लग जाएगी, ठीक है, लेयर खराब होने लग जाती है। What would you question that I have, मतलब आजकल बड़े फैंसी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, आई थिंक बड़े मार्केटिंग के लिए, ये हॉर्लिक्स हो गया, वुमेन हॉर्लिक्स हो गया, इसमें कैल्शियम ज्यादा, आपकी हड्डियां स्ट्रांग रहेंगी एंड ऑल ऑफ दैट, ऑल मार्केटिंग गिमिक, आई नो, बिकॉज़ when you look at the nutrition information तो कुछ और ही होता है। What is your take on that? मैंने उनकी आइडियल न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ी नहीं है, लेकिन ज्यादातर जितने भी मुझे इन पे पूरा भरोसा है कि साले अच्छी चीज तो उगा ही नहीं सकते, सॉरी एज आई यूज द रॉन्ग वर्ड, ठीक है। तो इतना भरोसा है मेरे को इन लोगों पे कि ये कैल्शियम के नाम पे भी शुगर बेच रहे होंगे पक्का, ठीक है। और वो शुगर लोग इतने खुश हो के खरीदते हैं क्योंकि वो टेस्टी लगता है बिकॉज़ ऑफ शुगर, ठीक है, मतलब एक एडिक्शन है ये,
ठीक है, कोई नहीं रोक सकता इस एडिक्शन को, ठीक है। तो कोई अगर ये बोलता है कि ये चीज खराब है, बोलते नहीं अक्षय कुमार बोल रहा था एड में बहुत अच्छी चीज है। अरे अक्षय कुमार कौन है भाई? अक्षय कुमार कौन है? एक्टर है ना, उससे बोलो एक्टिंग कैसे करते हैं, एक्टिंग अच्छी कर ले, तो चार मूवी अच्छी बना ले, बनाता भी जो कि, ठीक है। लेकिन क्यों वो न्यूट्रिशनिस्ट बन रहा है, क्यों वो डॉक्टर बन रहा है? ठीक है, मतलब एक न्यूट्रिशनिस्ट बोलता है ये खराब है, तो नहीं ये खराब नहीं है, सही है, क्योंकि अक्षय कुमार ने बोला। So listen to the sources of where you're getting that information from. हर एक चीज के पीछे एक रिसर्च होती है, एक स्टडी होती है, and आजकल मोस्टली सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल होती हैं. So I think you can do your own research and find out. And if you have any questions regarding anything at all, you can always DM us. We will try to help you out in clearing those doubts. Okay. Going forward, like you talked about the diseases, like osteoporosis is one of the diseases. Is there something called too much calcium? जी बिल्कुल होता है, लेकिन अभी मैं अगर ऑस्टियोपोरोसिस पे पहले थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ, ठीक है। फीमेल जो भी होती हैं, सभी को मेनोपॉज होना होता है एक एज के बाद, ठीक है। किसी को थोड़ा सा जल्दी होता है, किसी को थोड़ा ज्यादा देर में होता है। तो मेनोपॉज के बाद बॉडी खुद का कैल्शियम या फिर जो भी हम कैल्शियम अगर नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, तो कंज्यूम करने लग जाती है। तो बॉडी को उस टाइम पे कैल्शियम ज्यादा चाहिए होता है, बॉडी लेने लग जाती है, ठीक है। कहाँ से? हमारे जॉइंट से, हमारे बोन से, ठीक है। तो उस टाइम पे ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस फीमेल में, सभी फीमेल्स में सबसे ज्यादा रहते हैं। तो उस केस में हम कैल्शियम और विटामिन डी जैसी चीजें यूज करेंगे तो जॉइंट्स में पेन वगैरह भी कम होगा और बॉडी बेटर मतलब परफॉर्म कर पाएगी, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से थोड़ा बचने के भी तरीके हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल कुछ लोग, ये ज्यादातर लोग इनफैक्ट ये कह के टाल भी देते हैं कि एज है, जॉइंट तो दर्द करेंगे, ठीक है। पर ऐसा what about those cases where you were talking about कि बॉडी कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है? हाँ जी कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है। और ना कि सिर्फ विटामिन डी के केस में कि विटामिन डी आप आइडल रेशियो में नहीं ले रहे हो तो बॉडी से कैल्शियम ड्रॉप होने लग जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगी। हाँ, here I want to say it very clearly for the record that if you are taking calcium and if you're not taking vitamin D, there's no point, right? बॉडी में पूरी तरह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। फिर दूसरी चीज पे आ जाते हैं, ये तो बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। फिर दूसरी चीज पे अगर हम आए तो रहता है बहुत तरह की डायरेटिक्स चल रही होती है, ठीक है। ऐसे में जो कि बॉडी में वाटर होल्ड नहीं रहने देती, सोडियम सॉल्ट होल्ड नहीं रहने देती है, तो कैल्शियम भी वहाँ पे होल्ड नहीं रह पाता है। So diuretics is nothing but a medication या treatment जो होता है जिससे बॉडी में वाटर बना के थ्रू यूरिन पास आउट कराया जाता है, राइट? बॉडी में आइडल वाटर होल्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो कैल्शियम भी उसी के थ्रू आउट होता रहता है एक तरह से, ठीक है। और बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, या फिर किसी के किडनी लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो उस केसेस में भी बॉडी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत कम कर देती है, बहुत कम, ठीक है। बहुत कम से मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा खा लो, ठीक है, कि अगर बॉडी को जरूरत है 1000 की, आप 1000 खा रहे हो, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो आप 2000 खा लो, तो बाकी का जो 1000 है वो आपके ब्लड में घूमेगा, ठीक है। उसके किडनी स्टोन जैसी चीजें होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, कैल्शियम आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स वगैरह में, ठीक है, जमा होने लग जाएगा, ठीक है। हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा कैल्शियम खाना इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। और बॉडी में अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसका और रीजन ये भी हो सकता है प्रेगनेंसी टाइम पे भी कुछ, प्रेगनेंसी टाइम पे और पोस्ट प्रेगनेंसी भी कुछ ऐसी मेडिसिन चलती हैं जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाता है और एक तरह से कहूँ मैं काफी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो उस केसेस में कैल्शियम काफी कम हो जाता है बॉडी से भी, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन भी, ये रीजन होते हैं। All right. So this was about osteoporosis, and this is about how the calcium is not retained in your body. And I asked you about too much calcium, right? तो टू मच कैल्शियम का मैंने बताया अभी कि ज्यादा अगर लोग लेने लग जाते हैं ये सोच के कि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो ज्यादा ले लो, ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी से आउट नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आउट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपके ब्लड स्ट्रीम्स में घूमता रहेगा, ठीक है। आपके लीवर ग्लाइकोजन, आपके मसल ग्लाइकोजन, आपके पैनक्रियाज, आपके इंसुलिन को परेशान करता रहेगा, ठीक है। वहीं आपके हार्ट पे जाके एक लेयर बनाएगा, वो हार्ट पे जो
हमारे जो कनेक्ट होती है वेन्स वगैरह, आर्टरीज वगैरह, उनको ब्लॉक करना शुरू कर देगा अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम हम लेने लग जाए। अगर बहुत कैल्शियम लेने लग जाएंगे तो again, you know, too much calcium is also not good. Okay. Coming to the questions, which do you have anything to add before I ask the questions? Nothing. So मैंने कुछ questions पूछे थे. Few of the questions were, I think, related to, one was related to PCOS. First, okay, this was an interesting one. Let's cover this first. She says Pepsi लेने से calcium के effect, Pepsi से या Coca-Cola डायरेक्टली ये आप जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई इन सुक्रोलोज होते हैं, ठीक है, मतलब शुगर, ठीक है, प्योर शुगर होती है इनमें, इनफैक्ट प्योर शुगर से भी ज्यादा हार्मफुल चीजें होती हैं, राइट, ठीक है, तो वो चीजें डायरेक्टली कैल्शियम को इफेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली करते हैं। इनडायरेक्टली से मतलब है अगर किसी का पेप्सी मतलब कोई बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसके शुगर की वजह से उसका लीवर, हार्ट फंक्शनिंग, केएफटी हमारा, ठीक है, किडनी फंक्शनिंग जो होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। तो मैं पहले ही बताया है कि लीवर, किडनी अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा थोड़ा सा, राइट। सो दिस वाज इनडायरेक्टली लेन देन है। What about the other question that she asked, कि PCOS से कोई relation है कैल्शियम का? There was a question, let's go further and let's see. जी, PCOS से कैल्शियम का लेना देना सिर्फ इतना है क्योंकि PCOS में कई बार होता है, कुछ केसेस में होता है, कुछ में नहीं होता। जॉइंट हेल्थ जब पेन करने लग जाते हैं तो बॉडी कैल्शियम वहां पे एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो PCOS उस केसेस में हमें कैल्शियम नेचुरल सोर्स से लेना ज्यादा बेटर रहता है। ओके, ठीक है, क्योंकि PCOS में अदर भी मेडिसिन टैबलेट्स वगैरह चल रही होती है जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम हो जाता है। ओके, ये तो हम नेचुरल सोर्स से लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी थोड़ा तेज करती है, ठीक है, कंपैरेटिवली इन फॉर्म से। हाँ। So guys, I would like to share this link again for those who would be watching it, so that this is one of the last comments here before we end this feed. And this is about the multivitamins again, like Rahul has mentioned during the feed, that कोई एक चीज जरूरी नहीं है, right? हाँ, हमने अब तक नहीं लिखा है सप्लीमेंट्स आर सेफ, लेकिन बहुत ज्यादा आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। सप्लीमेंट सेफ है, बिल्कुल सेफ है, हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। जब भी बॉडी में किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होता है, ठीक है। लाइक पानी को भी अगर आप देखो तो एक तरह का सप्लीमेंट ही है वो। जब भी बॉडी डिहाइड्रेट होती है हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, राइट, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से जब भी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है किसी चीज की, अगर हम उसको टैबलेट फॉर्म में खा लें, सॉफ्ट जेल फॉर्म में खा लें, ठीक है, किसी भी अदर सोर्स के फॉर्म में खा लें, पाउडर फॉर्म में खा लें, उसका मतलब ये नहीं है वो चीजें खराब हैं, हमारे लीवर, हार्ट, किडनी पे इफेक्ट करेंगे, अटैक करेंगे। तो ये चीजें खाने से पहले लोग जरूर सोच लेते हैं सप्लीमेंट खाने से पहले कि ये हमारे लीवर के लिए ठीक है या नहीं है, हमारी बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है। लेकिन कभी भी आइसक्रीम खाने से पहले नहीं सोचते, पिज्जा खाने से पहले तो बिल्कुल नहीं सोचते, बर्गर खाने से पहले नहीं सोचते, ठीक है, चाउमीन, वड़ा पाव खाने से पहले नहीं सोचते, बाहर के मतलब क्या बताऊं 17 दिन से तले भुने तेल में बने हुए समोसे खाने से पहले नहीं सोचते। लेकिन सप्लीमेंट जो कि आपकी हेल्थ को ठीक कर रहा है वो, अरे यार ये कहीं हमारी बॉडी खराब तो नहीं कर देगा, सप्लीमेंट भी कहता है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट laughing, yeah, good session today. सोचते हैं बस उस बात को एंटरटेन नहीं करते कि लाइक इस तरह से हम ना यार ये हमारी बॉडी को तो बड़ा खराब कर सकता है यार, एनीवे खा लो बाद में सोचेंगे इसका। She's saying कीटो में भी ये सेशन करो एक, हाँ सो बहुत जल्दी करेंगे। We are actually running this series, so as soon as the series ये थोड़े से कैल्शियम के बाद अभी we haven't even decided कि क्या करने वाले हैं हम, because इसके आगे next Sunday को there is a session that we have on sigil magic which I will be heading, and बीच में Wednesday पे कोई feed नहीं है, because let me tell you,
happy birthday in advance. उस दिन राहुल का birthday है, so we are all out the entire day, very very busy day. So इसलिए there is no session that day. So इसी वजह से अब संडे को ये सेशन होगा एंड देन गोइंग फॉरवर्ड वी विल अपडेट ऑन द इवेंट सेक्शन एज टू व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. तो जैसे ही न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो हम हार्मोन्स एंड डाइट्स पे आएंगे एंड कीटो इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी विल कवर टू. सो यू नो हैंग ऑन एंड यू नो stay tuned for that, right? And with that in mind, I think this was a wonderful feed. Happy birthday in advance. Thank you, Amna. Thank you so much. Lots of love from India. Yeah, lots of love. And the Rover vibes. And the Rover vibes. PCOS, PCOSP, एक हम actually, you know, बड़े सारे questions आ रहे हैं. We are actually getting a lot of inquiries related to PCOS, PCOD, and there's another inquiries that we're getting with postpartum weight loss. ये ज़्यादा queries आ रही है हमारे पास आजकल कि after you know you've had a baby and then you know the baby is too young and now people have to go to work and then they put on weight and they have to take care of the baby as well. Then now they're looking for weight loss. So ये हम थोड़े different feeds इस पे भी करेंगे. So PCOS ये special cases जो हैं हम एक feed उस पे करेंगे and then we'll also cover this, you know, एक पूरी feed इस तरह से करेंगे जो step by step, you know, the cases actually that Rahul handles. So we will do that and we will cover this as well. So very good suggestions that you've had. So this is also. जल्दी एक feed ऐसी भी आने वाली है जिसमें ये ask anything, not personal, ठीक है, मतलब food and supplements के बारे में, ठीक है, food supplements, spiritual and जो भी इस तरह से हमारा काम है The Rover Vibe से, like fitness, wellness हमारा physical wellness है और mental wellness है, ठीक है, मतलब she is not a mental wellness. She's समारा, ठीक है. तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें, चाहे वो डाइट से जुड़ा हो, चाहे स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ा हो, या टैरो से रिलेटेड हो, कुछ भी, ठीक है. मैं टैरो की फीड इसलिए करना थोड़ा सा आजकल अवॉइड इसलिए करती हूं, द मोमेंट आई राइट टैरो ना, I get so many people flooding with questions. Okay, they don't want to like the page, they want a free reading, and then they're looking forward. Some people actually come and give orders. They are reading the question का आंसर क्यों नहीं दिया? I'm like, dude, hello. So I don't want that, you know. I want people to take the goodness out of it, and that's the reason we come online so that we can share the best things across. There's no problem in giving a free reading, but एक वो थोड़ा deserve करने वाला भी बनो, थोड़ा earn भी करो चीज को, you know. So then things related. far more related than जहाँ पर money involved नहीं होता, वहाँ intention involved होती है. जब मुझे intention अच्छी लगती है किसी के, when if I'm drawn to somebody, and I would like to do that even better, and I would like to do that more. So it is all about, you know, the energy that we are trying to give out in form of his sessions, nutrition हो गया, health and happiness series हो गया. And before we close the feed, I want to say that YouTube Pay, we got a little lazy. So YouTube Pay Aries onwards, I think सारे ही videos upload हो चुके हैं, जो कि हमने pages पे अभी upload नहीं किया है. Hopefully कल कुछ वहाँ traction नजर आएगा, थोड़ा सा other चीजों में बहुत ज़्यादा busy हैं. So if you're looking forward for your tarot readings for the month of September 2021 for all sun sign, it is on the YouTube. So you can go ahead and look at that as well. So all the best, guys. Bye-bye. Thank you so much for joining. Yeah, September horoscope is there, Amna. That's right. It's there. So you can Thank you, Amna. Take care. Take care, and we'll see you on next. We'll see you next Sunday. See you soon. She was just about to ask that. Bye.